students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 9 of your class 3 English, that is Beauty Lies in Heart. So let's begin with this chapter. Once upon a time there lived a man in ancient England. एक टाइम पे एक कौन रहता था? एक मैन रहता था कहाँ पे? एंशियंट इंग्लैंड में. His name was Robert. उसका क्या नेम था? रॉबर्ट नेम था. He had two children, a boy named, उसके two children थे. बॉय का नेम था जिमी and a girl named Jenny. गर्ल का नेम था जेनी. Jimmy was very handsome. जो जिमी था बहुत ज्यादा handsome था. But Jenny was unattractive. जो जेनी थी वो थोड़ी सी unattractive थी. Both of them were very different in nature. और दोनों थोड़े different थे nature में. Their habits and thinkings were also different. जो उनकी habits थी और thinkings थी वो भी different थी. While Jenny was polite, gentle and kind-hearted. जो Jenny थी polite थी, gentle थी और kind-hearted थी. Jimmy was obstinate, naughty and shrewd. जो Jenny था वो ज़्यादा obstinate था, naughty था और बहुत ज़्यादा shrewd था. One day the children were playing in the house. एक दिन क्या हुआ? Children अपने house में खेल रहे थे. Suddenly they came across a mirror. तो एकदम से वो कहाँ जाते हैं? Mirror के पास आ जाते हैं. Their father had brought it from the palace. जो उनके father कहाँ से लाए थे? Palace से लेके आए थे. They had never seen a mirror before. उन्होंने उससे पहले कभी mirror नहीं देखा था. Jimmy took the mirror in his hand and looked at it. जिमी ने क्या करा? जिमी ने अपने हाथ में मिरर लिया और अपनी तरफ देखा उसमें. Look Jenny, he said, how handsome I am. तो वो कहते हैं जेनी से, देखो मैं कितना ज्यादा handsome हूँ. I am far better than you. और मैं तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा हूँ. I am handsome but you are ugly. मैं क्या हूँ? Handsome और तुम क्या हो? Ugly हो. तो ugly means गंदा. Jimmy mocked Jenny and turned the mirror towards her face. जिमी ने क्या एकदम mocked करा जेनी को और टर्न कर दिया मिरर अपनी तरफ. Jenny was depressed. जेनी क्या हो गई? डिप्रेस हो गई. She was annoyed and felt insulted. वो बहुत ज्यादा annoy हो गई, चिड़चिड़ी हो गई और अपने आप को insulted feel करने लगी. Pushing her brother aside, she cried out. अपने brother को side में push करके वो रोने लगी. Get out of my sight, get out of here. तुम मेरे पास से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ. Jimmy stumbled and fell flat on the ground. Jimmy stumble हो गई, परेशान हो गई और एकदम ground पे गिर गई. The mirror in his hand was also broken into pieces. जो mirror था उसके hand में वो भी pieces में broke हो गया. He began to cry loudly. वो तो जिमी था वो बहुत ज्यादा cry करने लगा तेज. When Robert heard him wailing, he came running. जो रॉबर्ट था एकदम हर उसको सुना तो एकदम वो भागता हुआ आता है. What's the matter? Why are you fighting? क्या मैटर और तुम क्यों लड़ रहे हो? He asked angrily. उससे गुस्से में पूछा अपने चिल्ड्रन से. Jenny was sobbing too. जेनी भी क्या कर रही थी? sobbing कर रही थी, मतलब थोड़ा सा रो रही थी. She told everything to her father. उसने हर चीज अपने फादर को बताई. Robert laughed. Real beauty lies in heart, not in looks. रॉबर्ट ने हंसते हुए बोला रियल ब्यूटी कहाँ पे होती है? आपके हार्ट में होती है, आपके लुक्स में नहीं होती. He said to Jimmy, good looks also alone cannot make a person good. जिमी से बोला खाली गुड लुक्स एक पर्सन का गुड नहीं बनाते. If you are not good at your heart, all your beauty is worthless. अगर आप अपने हार्ट में अच्छे नहीं हो तो आपकी ब्यूटी सब worthless है, उसकी कोई फायदा नहीं है. So never be proud of your good looks. So कभी भी आपको good looks का proud of नहीं होना चाहिए. Always try to be mannered and polite in your behavior to the others. आपको हमेशा mannered में रहना चाहिए, polite रहना चाहिए औरों के साथ, good behave भी करना चाहिए. Jimmy realized his mistake. जिमी ने अपनी mistake को realize किया. He turned to Jenny and said, please forgive me for being rude to you. तो जिमी ने एक जेनी की तरफ टर्न होके बोला, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो थ्रू मैं तुमसे रूड बिहेव करा उसके लिए. आई प्रॉमिस दैट आई शैल नेवर टीज यू अगेन. और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी टीज नहीं करूंगा. एंड जेनी रॉबर्ट टर्न टू हिज डॉटर. एकदम टर्न हो गई, जेनी से बोला, एंड जेनी, if you are polite and gentle to everybody and be kind and helpful to the needy, your ugliness would never matter. तो जेनी से बोला कि अगर तुम पोलाइट हो, तुम काइंड हो, तुम हर किसी की हेल्प, तुम हर किसी नीडी के लिए हेल्पफुल हो,
और तुम्हारी अग्रीनेस मैटर ही नहीं करती क्योंकि तुम हार्ट से बहुत अच्छे हो। पीपल वुड ऑलवेज लव एंड ऑनर यू, तो पीपल हमेशा तुम्हें लव करेंगे, ऑनर करेंगे, मतलब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। रिमेम्बर, the person with good behavior and speech always look good and wins the heart of the people. तो किंग ने बोला हमेशा याद कर रखना, जो इंसान गुड, जिसका गुड बिहेवियर होता है, अच्छे से बात करता है, किसी से स्पीच अच्छी रखता है, गुड लुक्स उसके लिए मैटर नहीं करते, लोग वो हमेशा उनके लुक्स ऑलवेज लुक्स गुड एंड विंस द हार्ट ऑफ पीपल, वो हमेशा अच्छा दिखता है, दूसरों का हार्ट जीत लेता है। जेनी अंडरस्टूड व्हाट हर फादर वांटेड टू मीन, तो जेनी अच्छे से समझ गई कि उसके फादर क्या कहना चाहते हैं। शी टर्न टू जिमी एंड सेड, डियर ब्रदर प्लीज पार्डन मी। एकदम जिमी की तरफ टिमी की तरफ टर्न होके बोलती है, प्लीज डियर ब्रदर प्लीज पार्डन मी, डियर ब्रदर मुझे माफ कर दो। आई मेड अ ग्रेट मिस्टेक बाय पुशिंग यू, मैंने तुमको पुश करके एक बहुत ज्यादा ग्रेट मिस्टेक कर दी। आई शुडंट हैव बिहेव लाइक दिस विद यू, मेरे को विद माई ब्रदर, और मुझे अपने ब्रदर के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। नो जेनी इट्स मी हु टीज्ड यू फर्स्ट, तो ब्रदर कहता है नहीं जेनी, मैं ही हूँ जो तुझसे तुम्हें पहले टीज करा था। यू आर रियली वेरी स्वीट एंड मोर ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग एंड मी। जिमी हग्ड हिज सिस्टर, तो उसने बोला तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग हो, मुझसे भी ज्यादा। जिमी ने अपनी सिस्टर को हक कर दिया। रॉबर्ट एम्ब्रेस द चिल्ड्रन, रॉबर्ट ने क्या कहा, एम्ब्रेस करा अपने चिल्ड्रंस को। सो द चिल्ड्रंस वर आल्सो हैप्पी नाउ, द चिल्ड्रंस से अब बहुत ज्यादा हैप्पी थे। इट्स बेटर टू बी गुड देन टू लुक गुड, मतलब अच्छा बात है कि आप अच्छे रहो, ज्यादा दिखने से अच्छा ही मैटर करता है कि आप अच्छा बिहेव करो। द चैंटेड एंड चोरस, चोरस मतलब मीन्स जॉय, वो एकदम खुशियों से एकदम चैंट करने लगे, मतलब गाने लगे। सो thank you. That's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.